Ujjwal Tyagi. Today I am here to present my car sales dashboard, and here was my table, the data which I taken. Though the rows was 10,000 and the column was 21,000. Or the column was 21, and the data there is a invoice ID and date, year, month, brand, model, segment, and many more. So this was my dashboard. On the left hand, there is a many KPIs and cards for total revenue, last year's sales, total profit, profit margin, and units sold. And on the top, we have some slicers like models, transmission, and brands. So my total revenue was 51 billion, and the last year's sale is a four-year data. So the last year was 2025, and the sales was 12.1 billion, and the total profit was 3 billion. Is the overall profit of 51 billion, and the profit margin is all over revenue was 6.19%, and the units sold in this 4 year was 25k. The first chart was I taken is a pie chart where I show the variant sales like top, mid, base. I taken three variants like top, mid, and base. As we can see, the top variant is always the most sales, 44.08% sales, and the base was the less sales, 24.17% sales. In a segment sales, we have four segment: SUV, hatchback, and MPV and sedan. MPV was a multi-purpose vehicle, and SUV was a sports vehicles. If we see, the SUV have the major sales here, the 60% sales, and hatchback have a 25.16% sales, and the sedans was the lowest sale because it's a luxury car. Not more people can afford it. And if I show the data in quarterly form, the quarterly they have the 4 quarters, where if you see the 12 billion, 3 billion, 13 billion, 13 billion, 12 billion, is around the total sale, total revenue which I have gotten is a 4 year sales. So the data was quarter 1 was not for 1 year sale, it's a 4 year sales, which conclude quarter 1 the months of 4 year sales months. So the first quarter was 12.5 billion, the second quarter was 13.0 billion, and the third quarter was 13.3 billion, and the fourth quarter was 12.6 billion. Is the my fourth chart? It's a tree map and the states and cities. We have 5 states: Maharashtra, Delhi, Tamil Nadu, Karnataka, and Uttar Pradesh. In Maharashtra, our car sales was in 2 cities, Pune and Mumbai. In Delhi, there is only 1 city where the car was sales, in New Delhi. And Tamil Nadu and China, Chennai. In Karnataka is Bangalore, and Uttar Pradesh, Lucknow and Noida. These cities are those cities which I have the data of these cities, not for more cities. I only take these 7 cities here. My next chart was brand sales. It's over a bar chart where I show the total sale brand by sales. As we can see, the Toyota has the most sales, 15 billion, and in the lowest sale was Maruti Suzuki, is 7 billion. And the top 3 cars which we have the most selling cars were: first was Fortuner, second was XUV 700, third was Innova. And these are the states where the sales are ongoing. This was my second chart. As you can see, the total GST which the brands pay to the government was 4 billion. Is the GST of all over the sales of 51 billion which they pay, the GST was 4 billion, and the discounts which the brands give to the customer was 300 million. And here the bottom sales, the which cars which perform very less. In the last we can see the Swift was the last, then Punch, then Baleno. In next we can see the state performance, the which states give us the most sales. In this we can see the Maharashtra give the most sales, but as we can see, Delhi and Tamil Nadu almost have the same percentage, but little bit difference between them. The least sale was in Uttar Pradesh. In the last is the profitable segment. The which segment have the most profit provide to the company was SUV, and the least was sedan.
in a transmission shell, as we can see, they have a very little difference between them as manual and automatic. Customer prefer both as a same. In there is a which variant pays the most GST was the top variant, which helped the government to get them the GST. And the last one was city-wise sales. If we can see, the New Delhi provides the most sales, and the least sale was in Noida, is 4.8 billion. If I talk about the insights of my dashboard, was SUV segment dominates the most, as we can see the 60% share of all over the segments. And in it's a premium variant preferred, as we see that in our data the premium sales was very high. So the as we can see, the India was a growing country where people develops and getting more and more cars. Toyota is a revenue leader, where we can see the most selling car was Fortuner, as is a Toyota company. And quarter three is the strongest quarter, where the most sales are present. In the profit margin was around 6%. Is overall of revenue. In discount impact margin, like we can see the 16, we see the 300 million discounts company provides on the sales of 51 billion revenue. Metro cities dominate sales, that we New Delhi have a most metro stations, and people develops their metro cities where people can buy more and more cars, so that they have the more selling capability. And so how we can tackle them, focus on marketing on SUV segment more, so because in India we can see that the roads was not good, so sedans type cars we can do not take them on the roads where the roads are not good. So many people prefer SUV, so we can more focus on it. As we can promote top selling models aggressively, like the top models are like people want more and more facilities in their car, so they suggest to get top sales or top variants in all over the car, so we can more focus on it. Improve underperforming brands, like Swift was not performing good, as we can see that they are the safety issues. We can start it, there are very low star ratings in according to the safety. Offer discounts in weak quarter, like we can see the fourth quarter was not performing well, so we can give the, as the fourth quarter was Diwali time and more festival time, so we can provide more and more discount in that quarter. So thank you. So what is the fourth quarter? Fourth quarter में क्या क्या आता है उज्जवल? Sir, fourth quarter was December, November, October. तो अगर मैं कहता हूँ कि जनवरी, फरवरी, मार्च है फोर्थ क्वार्टर, तो मान जाओगे आप? नहीं सर. क्यों? वो फर्स्ट क्वार्टर हुआ ना सर. सो किसी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर पता है क्या होता है? मार्च से सर. सो कंपनी में दो तरह के फाइनेंशियल ईयर होते हैं. कुछ कंपनी के फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक. यस सर. और कुछ कंपनी के फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होते हैं अप्रैल टू मार्च. सो अगर जो अप्रैल से मार्च के फाइनेंशियल ईयर है, उनके लिए लास्ट क्वार्टर क्या हुआ? जनवरी, फरवरी, मार्च. यस सर. ठीक है. तो अगर थर्ड क्वार्टर है यहाँ पे कार के लिए, मुझे लगता है कि जो लास्ट क्वार्टर है वो जनवरी, फरवरी, मार्च है, क्योंकि अगर लास्ट क्वार्टर लास्ट वाला होता अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वाला, यस सर. तो उसमें कार की सेल्स सबसे ज़्यादा होती है. यस सर. ठीक है. तो माइट भी यहाँ पे हम लास्ट क्वार्टर की जो बात कर रहे हैं वो जनवरी, फरवरी, मार्च है. स्क्रीन ओपन करो. ठीक है. आपने एक और पॉइंट यूज़ किया था कि यहाँ पे एसयूवी की सेल क्यों इंप्रूव हुई है? यस सर. क्यों हुई है आपका बताओ, जस्टिफिकेशन क्या था? सर इंडिया में रोड्स इतने ठीक नहीं है सर अभी, तो एसयूवी हैज अ मोर हम यहाँ पे रोड क्लियरेंस सोनीपत, सर. हापुड़, झज्जर की बात नहीं कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट द दिल्ली, उत्तर प्रदेश, नोएडा, लखनऊ, कर्नाटका, बैंगलोर, पुणे, मुंबई, दिल्ली, इन Yes, sir. सिटीज़ के अंदर आपको लगता है ये रोड का इशू है? अब भी है सर, बहुत These are the metro cities. यस सर. These are the grade 1 cities. दे हैव द मोस्ट ट्रैफिक इन दिस, सो तो सिडान. ट्रैफिक का क्या फ़र्क पड़ता है सेडान और एसयूवी में? सर सिडान वाज लेंथ वाइज बहुत बड़ी हो जाती है. तो अगर हम तो ट्रैफिक, इफ आई टॉक अबाउट दी फॉर्च्यूनर, तो फॉर्च्यूनर की लेंथ और आप एक सेडान की लेंथ में कितना कंपेयर होगा? ज़्यादा कंपेयर है ही नहीं. वो Fortuner कंपेयर की नहीं, length लेकिन काफी सर है. अगर रोड क्लियरेंस देखे तो सर फॉर्च्यूनर की ज़्यादा है ना सर. फॉर्च्यूनर की लेंथ विथ डिसेंट है, बड़ी है. यस सर. छोटी कार तो नहीं है फॉर्च्यूनर.
तब भी वो बिक रही है। तो Yes, जो sir. आप रीज़न दे रहे हो वो गलत है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट मेट्रो सिटी ओनली। क्या रीज़न हो सकता है और? सर पब्लिक सर ज़्यादा कंफर्ट तो वैसे लग्जरी कार सेडान में होता ही है, पर सीडान सर ज़्यादा प्रेफर नहीं करती पब्लिक। क्यों नहीं करती? वही बोल रहे हैं, जो आपने रीज़न दिया वो गलत, उतना राइटली फिट नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मेट्रो सिटीज़ की बात कर रहे हैं। यस सर। अगर यहाँ पे टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ होती जहाँ पे रोड थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं, तो वहाँ आई कैन अंडरस्टैंड वो चीज़ हो सकती है। पार्किंग का आपने बोला, फॉर्च्यूनर ऑक्यूपाई दी डिसेंट स्पेस, Yes, ठीक sir. है, इन कंपेयर टू लाइक अदर कार्स। तो फॉर्च्यूनर की सेल सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। और क्या रीज़न हो सकता है? फॉर्च्यूनर की तो सर ज़्यादातर पॉलिटिक्स बिजनेसमैन यूज़ करते हैं ज़्यादातर कितने सर। पॉलिटिशियन मानते हो आप? नोएडा के अंदर कितने पॉलिटिशियंस होंगे? नोएडा नोएडा के अंदर सपोज 10 करोड़ पॉपुलेशन है या 5 करोड़ है, तो 5 करोड़ में से कितनी पॉपुलेशन है जो पॉलिटिशियंस है? 150 150। तो फिर इतनी नंबर ऑफ फॉर्च्यूनर की सेल कैसे आ रही है? तो एज अ नरेटिव सेट है ना सर फॉर्च्यूनर का, एज अ हम देखते हैं कि मार्केट में कैसी उसकी हाइप है, उसके अकॉर्डिंग भी लेते हैं ना सर फॉर्च्यूनर। ऐसे में ये 2025 का आया, जैसे कि अगर हम देख रहे हैं कि अब सो अपकमिंग यू ईयर्स आर में। टॉकिंग अबाउट हियर लाइक कि लोगों के पास फाइनेंशियल्स काफ़ी ज़्यादा है, सैलरी काफ़ी अच्छी हो रही है, ठीक है, तो लोग अब अपनी कंफर्ट जोन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट कर रहे हैं, Yes, क्योंकि sir. ऊंची कार देखना, सेफ्टी एक कंसर्न रहता है बहुत बड़ा। Yes, sir. उसको एड्रेस करते हुए लोग अब प्रीमियम से एसयूवी पे जा रहे हैं। सो नॉट ओनली एसयूवी, प्रीमियम एसयूवी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, Yes, जहाँ sir. पे वो एक विजिबिलिटी लग्जरी को भी एंजॉय कर सकें, एंड वहाँ पे आप सेफ्टी भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है जो फॉर्च्यूनर जैसी कार्स में आपको वो मिलता मिलती है, है, yes, sir. ठीक है। You have mentioned like this data belongs to 2022, 3, 4, 25, right? Yes, sir. 4 So years. फोर ईयर डेटा है। Yes, तो sir. मुझे आप ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस बताओ, कितना ग्रोथ परसेंटेज के साथ हम काम कर रहे हैं? अगर हम तो व्हाट इज सर द ग्रोथ परसेंटेज ईयर ऑन ईयर? अगर हम 2022 की बात करें सर, प्रॉफिट मार्जिन हमारा 6.09 था सर। 2022 के कंपेयर में 23 का प्रॉफिट मार्जिन क्या है? कितनी ग्रोथ परसेंटेज? 2000 22 के कंपेयर में 23 में क्या ग्रोथ परसेंटेज आया है? कितना रेवेन्यू हमने एडिशनल किया है? अगर हमारा सर, इफ आई एम कंपेयर विथ Yes, sir. 2022 टू 2023। अगर ये देखें तो इसको एक मिनट select होना हो रहा है। कितने से इसमें नाम था, प्रॉफिट अमित, ग्रोथ परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा? सर गोल्फ लास्ट ईयर सेल, डिफरेंस बिटवीन लास्ट ईयर सेल एंड करंट ईयर सेल अपॉन लास्ट ईयर सेल इनटू 100 सर। तो कितना टाइम लगे बनाने में? वो तो इसमें वो एक सिलेक्टिंग उसमें स्लाइसर में दिक्कत आ रही थी सर, वो तो मैं डाटा नहीं देख पाया उसका। वो स्लाइसर में सिलेक्ट में उसमें 38 बिलियन दिखा रहा था, वो फर्स्ट ईयर की सेल 12 बिलियन थी, तो 12 पॉइंट्स कुछ थी, और नेक्स्ट ईयर की सेल 13 पॉइंट वो थी। तो मैं जब सिलेक्ट कर रहा था तो इसमें एक्यूरेट नहीं दिखाया इसमें यहाँ पे। मैंने लास्ट टाइम आप सबको बोलता ना मुझे ग्रोथ परसेंटेज चाहिए। जी सर। कहाँ है ग्रोथ परसेंटेज? दिखाओ, कहीं मेंशन किया आपने? हम ईयर ऑन ईयर कितना ग्रो कर रहे हैं, ये तो आपने एक फिगर दे दिया मुझे। आपने ये Yes, बताया sir. कि ईयर ऑन ईयर हम क्या ग्रो कर रहे हैं। क्या ऐसा सिनेरियो जो टोयोटा है, जो एसयूवी है, वो 2022 में भी वही था और 25 में भी वही है? माइट भी हो सकता है 2022 में सिनेरियो कुछ और हो। यस सर। हो सकता है कि नहीं? हो सकता है 2022 में सेडान के लोग ज़्यादा प्रेफरेंस करते हो, धीरे धीरे परचेसिंग बिहेवियर चेंज हो गया, ठीक है, चॉइस चेंज हो गई, पैटर्न चेंज हो गया, तो अब 2024-25 में एसयूवी ज़्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं, तो Yes, sir. ट्रेंड चेंज हो रहा है, बाइंग पैटर्न चेंज हो रहा है।
तो ये आपने कहाँ दिखाया, कुछ दिखाया आपने ऐसा? क्वार्टर वाइज तो दिखा दिया सर, लेकिन मैं क्वार्टर ईयर वाइज कौन सा वाइज क्वार्टर दिखाया आपने? ये सर 4 क्वार्टर्स। सर ये आपका है ना क्यूमुलेटिव क्वार्टर से, मैं अगर आपसे 4 ईयर ऑन ईयर्स ईयर क्वार्टर पूछूं तो आपने वो नहीं दिखाया। अच्छा ईयर चलो, वाइज क्वार्टर सर मुझे ये। आप एक लोकेशन स्पेसिफिक ट्रेंड दिखाओ। आप मुझे लखनऊ का ट्रेंड दिखाइए। लखनऊ नोएडा का ट्रेंड दिखाइए। नोएडा में क्या सिनेरियो है, जितने भी कार सेल है, तो कार का सबसे ज़्यादा टॉप कौन सा वेरिएंट सेल हो रहे हैं? नोएडा के अंदर सर। हाँ नोएडा के अंदर। So what is the scenario in Noida? So can we create 3 different pie chart? One belongs to Noida, one belongs to Pune, and third one belongs to Bangalore. Yes. हाँ, so I want to understand the business या business flow of this brands like Toyota का क्या है, महिंद्रा का क्या है, या कार के वेरिएंट का कि क्या क्या परफॉर्मेंस है इन सिटीज़ के अंदर। डाटा तो इसी पेज पे है ना। अगर हम सर नोएडा की बात करें तो सर ये नोएडा में हमसे टॉप वेरिएंट सर 43.3% है। और अगर सेगमेंट की बात करें तो उसमें भी एसयूवी 58.97% है सर। और अगर हम क्वार्टरली देखें तो इस फर्स्ट क्वार्टर में 1.26 बिलियन है, सेकंड क्वार्टर में 1.20 बिलियन है, और 1.18 बिलियन है, फोर्थ क्वार्टर में 1.10 बिलियन है सर। पुणे का देखिए। यस सर। पुणे में भी सर एज वी कैन सी यहाँ अभी पर आप देख रहे हैं, आपको क्या समझ में आया यहाँ पे? अमित बताइए क्या डिफरेंस आ रहा है? इसीलिए कह रहा हूँ फोकस करिए जो प्रेजेंटेशन दे रहा है सामने वाला। उज्जवल डिस्क्राइब करो यहाँ पे क्या डिफरेंस आ गया। सर वहाँ पे हम देख रहे थे कि एसवी की सेल अगर हम ऑल ओवर चेक करें तो वहाँ 59% कुछ थी सर, और यहाँ पर चेंज हो गया 61 पॉइंट यहाँ पर बढ़ी है सर हमारी। यहाँ पे अगर पुणे ब्रांड के अंदर। स्पेसिफिक की बात करूँ तो वहाँ पे नोएडा के अंदर टोयोटा वाज अ लीडर। यस सर। यहाँ पे इफ आई टॉक अबाउट द महिंद्रा इज अ लीडर, राइट। तो अगर हम टेरिटरी वाइज परफॉर्मेंस देखें तो टेरिटरी वाइज ब्रांड स्पेसिफिक या ब्रांड चेंज हो रहे हैं, राइट। यस सर। वहाँ पे यहाँ टोयोटा, पर हैरियर आ गया सर, वहाँ पर टॉप सेलिंग कार में एक्सयूवी 700 थी सर। ठीक है, यहाँ पे हैरियर भी एंट्री हो गई। Yes, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हर सिटीज़ का परफॉर्मेंस अलग अलग है, हर सिटी का बाइंग पैटर्न अलग अलग है, कस्टमर बिहेवियर अलग अलग है। दिख रहा है आपको? यस सर। तो हमें ये डीप एनालिसिस भी करना है। आप चेन्नई को ओपन करिए एक बार। बैंगलोर का। चेन्नई में इनोवा आ गई सर अब टॉप सेलिंग कार में, पहले वो नहीं थी सर इसके अंदर। और एक बार आप मुंबई को ओपन करिए प्लीज। तो आप देख रहे हैं कितना डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। यस सर। तो हर सिटीज़ का, हर जोग्राफिकल एरिया का कस्टमर बिहेवियर अलग है, बाइंग पैटर्न अलग है, ठीक है। आप निकाल सकते हैं मेरे को ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस। ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस सर। आपने 4 क्वार्टर का दिया है, 4 क्वार्टर का परफॉर्मेंस दिखाइए। क्वार्टर 1 के कंपेयर में क्वार्टर 2 का परसेंटेज ग्रोथ कितना है? 1.3। भी दिखा रहा है।
ठीक है 100% ठीक है सर। कल उसमें डिजिट्स में तो ठीक दिखा रहा था, लेकिन इसमें 100% दिखा रहा है चेंज। यार देखो ये सब चीज़ें आपको करनी है, ये मेरे को नहीं पूछना है, आप लोग को खुद आपको एनालिसिस करना है। उज्जवल, ये आपको पता था ना कि क्वेश्चन इस तरह से हो सकते हैं। यस सर। डैशबोर्ड आइए, वापस ओपन करिए अपना जो मेन डैशबोर्ड था वो, जी सर। सारी सिटीज़ को इंक्लूड करिए उसके अंदर, सारी सिटी को इंक्लूड करिए। एक सिटी वाइज परफॉर्मेंस था, वो कहाँ पे है? क्या सर? सिटी वाइज परफॉर्मेंस था ना आपका, वो कहाँ पे है? सेकंड पेज। इसका पहली वाली शीट पे, ठीक है। अब मुझे कोई एक आंसर देगा यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा जो स्टेट का परफॉर्मेंस है, बेटा मिनिमाइज करो, और हाँ, स्टेट का परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा जो महाराष्ट्र का है, ठीक है, दिख रहा है कितना कंट्रीब्यूशन है? 20.72%, ठीक Yes, sir. है। बट इफ़ आई टॉक अबाउट दी मुंबई, तो मुंबई का जो रेवेन्यू आ रहा है वो ओनली 5.3 बिलियन है, ठीक है, इन कंपेयर टू चेन्नई, बैंगलोर एंड न्यू दिल्ली। तो वहाँ पे 20% कैसे आ रहा है शेयर? सबसे हाईएस्ट कैसे आ रहा है? महाराष्ट्र। जब न्यू दिल्ली 10 बिलियन कर रहा है, चेन्नई 10 बिलियन कर रहा है, बैंगलोर 10 बिलियन कर रहा है, तो फिर मुंबई वहाँ पे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कैसे जनरेट कर रहा है? महाराष्ट्र का शेयर्स कैसे है वहाँ पे? 20.72। वो पुणे और अमित, किसी को क्वेश्चन मेरा समझ में आया कि नहीं? महाराष्ट्र का सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है अगर सेल में, और मुंबई का परफॉर्मेंस ओनली 5.3 बिलियन है, तो फिर महाराष्ट्र का सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन कैसे हो गया? यस अमित, बताओ, अमित बोलो। ठीक है, क्या बोला आपने? फिर से सबको सुन बताइए। पुणे कम्स इन महाराष्ट्र। अगर इफ यू ऐड पुणे इन मुंबई, द टोटल रेवेन्यू विल बी 10.6 बिलियन, ठीक है। तो 10.6 किसी का दिख रहा है? दिल्ली, चेन्नई, बैंगलोर का नहीं। तो इसीलिए आपको महाराष्ट्र का वहाँ पे परसेंटेज शेयर दिखा रहे हैं 20.72%। राइट अमित, क्लियर है? ठीक है। हेयर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दी ओनली सिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट दी स्टेट कॉन्ट्रीब्यूशन। सो स्टेट कॉन्ट्रीब्यूशन इज 20.72%, ठीक है, क्लियर है? ठीक है। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? अमित, तनिष्क, आदित्य? तो उससे पेज पे डैशबोर्ड बोलते हैं ना, मैं बोलता था वहाँ पे सेगमेंट सेल्स जो हमारी डिस्क्राइब हुई है लाइक एसयूवी और जो अपन सेगमेंट सेल्स। हाँ सेगमेंट्स वगैरह, और यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे हमें जो 4-5 टाइप्स में डिवाइड हो चुकी है, एसयूवी है और हैचबैक है, एमपी है, सेडान है, और जो हमारा वेरिएंट सेल्स है वो हमारा सिर्फ टॉप है, मिड एंड बेस है। तो यहाँ पे लाइक हमारा वहाँ पे सेडान का पेज नहीं है, यहाँ पे ये टॉप सिर्फ वेरिएंट सेल्स का दिखाएगा, ये टोटल मिला के मतलब ये जैसे वेरिएंट सेल्स है, तो टॉप में कौन-कौन से वेरिएंट हो सकते हैं? नहीं, इसमें मैंने वेरिएंट ही 3 लिए, टॉप, बेस और मिड, बस। आप जो टॉप वेरिएंट है उसके अंदर कौन-कौन से सेगमेंट्स आ रहे हैं? सेगमेंट उसमें 4 आते हैं। सो आदित्य यहाँ पे है ना, अगर आप एज अ स्कॉर्पियो भी ले तो वो भी मिड से, बेस से मिड, और फिर टॉप वेरिएंट्स में X8 वो वगैरह आते हैं ना, तो उस कोई भी कार आप लेंगे तो उसमें 3 वेरिएंट आएंगे, बेस, मिड, टॉप, ठीक है। तो वो चीज़ रहेगी। उज्जवल, इसमें यू हैव एनी डेटा लाइक एसयूवी में कौन कौन से ब्रांड है और उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, या कौन कौन ब्रांड लाइक हैरियर, फॉर्च्यूनर, तो उनका ओवरऑल क्या कंट्रीब्यूशन है पूरे उसके अंदर? एसयूवी के अंदर सर? हाँ, एसयूवी के अंदर तो वो सर अगर उनका क्या शेयर है, टोटल शेयर क्या है उनका? हाँ, अगर एसयूवी का देखेंगे तो सर, तो उसका टोयोटा के अंदर 9 बिलियन का शेयर है सर। एसयूवी के अंदर? यस सर। महिंद्रा नहीं सर, वेयर इज हैरियर? हैरियर वाज इन
अगर हम सभी सिटीज़ को देखेंगे तो वो सभी नहीं ब्रांड्स तो हैरियर को कंट्रीब्यूशन आना चाहिए ना, आई एम टॉकिंग अबाउट यस दी सर। एसयूवी, तो एसयूवी में तो हैरियर आता ही है। हैरियर का कॉम्पिट वो 212 मिलियन है सर एसयूवी के अंदर। उज्जवल, आई वांट टू अंडरस्टैंड ओवरऑल जो एसयूवी का जो बिजनेस है उसका टॉप 5 सेल होने वाले जो वेरिएंट हैं या मॉडल हैं वो कौन से हैं? एसयूवी में ना सर, एसयूवी में टॉप 5 कौन से हैं? ये है सर फॉर्च्यूनर एक्सयूवी 700 एंड इनोवा हैरियर एंड स्कॉर्पियो। तो वहाँ पे हैरियर क्यों नहीं आ रहा जब मैंने आपसे पूछा था? वो 4th नंबर पे ना सर, वो टॉप 3 था उसमें। ओके, इनोवा कितना नंबर है? ठीक है, कोई क्वेश्चन है आप लोग के? प्रथम, थर्ड क्वार्टर में कौन सी कार सबसे ज़्यादा सेल्स होगी टॉप 5 में? थर्ड क्वार्टर में सबसे ज़्यादा फॉर्च्यूनर एक्सयूवी एंड इनोवा, और ये उसका है। अगर इसको हटा दूँ मैं तो तब भी यही है, फॉर्च्यूनर एक्सयूवी इनोवा हैरियर एंड स्कॉर्पियो थर्ड ठीक क्वार्टर में। ठीक है उज्जवल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अच्छा प्रेजेंटेशन था आपका, लास्ट के कंपेयर में, लास्ट मंथ के कंपेयर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, बट ऑर्गेनाइजेशन वांट टू नो अबाउट दी ईयरली से वेयर वी आर परफॉर्मिंग वेल। ठीक है, हम कितने परसेंटेज के साथ हम ग्रो कर रहे हैं क्वार्टर टू क्वार्टर, लाइक यू हैव मेंशन क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, देन क्वार्टर 3 के बाद सडन डिप आया है। तो हमने कितना रेवेन्यू जनरेट कर लिया क्वार्टर 3 तक, और जो हमें हिट पड़ा है क्वार्टर 4 में वो कितना परसेंटेज वाइज, वो कितना हम डी ग्रोथ पे चले गए। तो वो ऑर्गेनाइजेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही प्लान करती है, सो दैट कि फिर मैं नेक्स्ट क्वार्टर जब आने वाला होगा, नेक्स्ट ईयर में जब 4th क्वार्टर आएगा, तो मैं एडिशनली पहले से प्रिपरेशन करके रखूँ, क्योंकि मेरा 5 साल का ट्रेंड ही यही कह रहा है कि लास्ट क्वार्टर हमारा डिप जाता है, यस सर। तो उसको कैसे कवर कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान देनी है। ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस चाहिए सबके साथ, मतलब इट्स नॉट अबाउट उज्जवल, जो भी आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं 4 साल 5 साल का डेटा है, तो ईयर ऑन ईयर हमारा क्या परसेंटेज चल रहा है, कितने परसेंट के साथ ग्रो कर रहे हैं हम, क्वार्टर टू क्वार्टर हमारा क्या परफॉर्मेंस है, और प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट हमारा क्या परफॉर्मेंस है, ये सब चीज़ें आपके डैशबोर्ड में होनी चाहिए। Yes. ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पहले से प्रिपेयर करके रखनी है। क्लियर है? Yes, ठीक है, चलो उज्जवल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।